एक मसल को हम स्टिमुलस दे रहे हैं, सोचो ये मैकेनिकल स्टिमुलस है. The moment I am giving a muscle a mechanical stimulus or any type of stimulus, the stimulus can be mechanical. वो चोट हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो सकता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो सकता है, वो केमिकल स्टिमुलस हो सकता है. द मसल्स को जब मैंने स्टिमुलस दिया, मसल कॉन्ट्रैक्ट किया. सो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करने, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करना और एक स्टिमुलस देने के बीच के जो गैप है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट पीरियड. दैट इज कॉल्ड लेटेंट. स्केलेटल मसल में कितना है? 0.05, 0.0022, 0.005 सेकंड. देखो कितना कम समय, इसका समय जितना कम होगा उतना उसका फैटिग बढ़ेगा. इसलिए स्केलेटल मसल्स बिकम्स फैटिग सूनर. इस कहां से आया? फ्रॉम द टर्म मॉर्टालिटी, द डेथ रेट, मॉर्टालिटी. ओके, mortality. Okay, now rigor mortis, the state of body stiffness after stiffening after death. हेलो फिजियो डॉक्टर्स, मैं आपका उज्जवल सर आज एक न्यू वीडियो लेके आया हूं ऑन द टॉपिक मूवमेंट एंड लोकोमोशन. इन द अर्लियर वीडियोस what we have seen, we have already covered in lecture 1 about the types of movement, lecture 2 about the types of muscles, lecture 3 on the structure of muscles, and now in the lecture 4 we are going to study about the properties of muscles. Muscles के property हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि muscles के property जानने से बहुत सारे applied based questions, application based questions हम solve कर पाएंगे. ठीक है? So muscles का property क्या है वो देखेंगे आज के टॉपिक में. और जो टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, यू बी गेटिंग ऑल दिस notes in as a hard copy in the description box. You can just check it over there. Fine. And to see all the earlier videos, you can click on the I button. Okay. Now let us start with the properties of muscles. So when we talk about the properties of muscles, the first property which starts is with all or none law. All or none law. Now what is the meaning of this all or none law? All मतलब होगा अगर होता है पूरा होगा, none मतलब अगर नहीं होता है तो एकदम नहीं होगा, है ना? So all or none law मतलब क्या है? Minimal strength of stimulus required to cause contraction. जो मिनिमम स्टिमुलस एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लगेगा, अगर वो मसल को मिलता है, then muscle is going to completely show contraction. That is all, pura. So the amount of the stimulus or the threshold level of stimulus which is required for a muscle to contract, उतना मिलेगा तो muscle is going to contract. This is called all. अगर वो threshold level से कम stimulus muscles को मिलता है, muscle is never going to contract. That is called none. एकदम नहीं. मतलब स्टिमुलस से अगर कम, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से अगर कम स्टिमुलस मिलता है मसल्स को, तो मसल्स एकदम ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. तो मैं जब आपको बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, दैट मींस एक प्रॉपर्टी तो इससे बनता है कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी. सो सेकंड कैरेक्टर वी कैन कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्टिलिटी. सो मसल्स व्हेन दे गेट थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा. The second one is latent period. What is latent period? Latent period मतलब time gap है. So the time period between the application of the muscle stimulus muscles को देने के समय and the beginning of contraction. जब एक मसल को हम स्टिमुलस दे रहे हैं, सोचो ये मैकेनिकल स्टिमुलस है. The moment I am giving a muscle a mechanical stimulus or any type of stimulus, the stimulus can be mechanical. वो चोट हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो सकता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो सकता है, वो केमिकल स्टिमुलस हो सकता है. द मसल्स को जब मैंने स्टिमुलस दिया, मसल कॉन्ट्रैक्ट किया. सो मसल्स जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करना और एक स्टिमुलस देने के बीच के जो गैप है, that is called latent period. That is called latent period. This is the time when calcium is released from the sarcoplasmic reticulum. स्टिमुलस देने के बाद जो समय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को
लगता है to release calcium, that particular time period is called latent period, which is in other ways called as the time period between the application of the muscle stimulus and the beginning of the contraction. Okay, so ये देखो, ये latent period है, stimulus दिया, एक समय लिया, उसके बाद वो contraction किया, उसके बाद थोड़ा सा क्या लगेगा उसको, मसल कंट्रैक्ट करने के बाद वो तो डेफिनेटली, अगर ये है मसल का साइज, सो दिस इज द साइज, से 1 मीटर फॉर एग्जांपल सेक, और आपने हैमर से मसल्स को मारा, तो मसल इज गोइंग टू बिकम हाफ इट्स लेंथ, ये उसका नॉर्मल लेंथ था, इट्स गोइंग टू बिकम हाफ मीटर, तो ये हाफ मीटर आने के बाद वो फिर से क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन पीरियड, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन पीरियड, द टाइम टेकन फॉर इट टू कम डाउन टू इट्स नॉर्मल सेल्फ लेंथ में, और उसके बाद थोड़ा सा समय वो बिताता है, and that is called refractory period. Let me tell you, this is star mark point. What is refractory period? We're going to talk about that. So ये था latent period. The second characteristics. The third characteristics is about relaxation period. अभी आपको दिखाया गया relaxation period. What is that? It is the interval period, मतलब time gap required for the contracted muscle. वो जो muscle contract कर दिया to regain its original relaxed state. So जो time gap उसको चाहिए, जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद फिर से उसी नॉर्मल लेंथ में लाने के लिए, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट मसल टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल सेल्फ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन पीरियड. क्या लिखा है यहां पे, इन स्केलेटल मसल, वॉलंटरी मसल्स में द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड्स, 0.05 सेकेंड्स. इफ यू कंपेयर इट विद विसरल मसल्स, मतलब स्मूथ मसल्स के साथ कंपेयर करोगे, तो ये रिलैक्सेशन पीरियड थोड़ा ज्यादा है. द टाइम पीरियड इज लिटिल बिट मोर, इट इज 2.3 सेकेंड्स. फाइन, कम ऑन टू द नेक्स्ट वन कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड. मैंने स्टार मार्क दिया था इसको, इंपॉर्टेंट है. लास्ट 25 इयर्स क्वेश्चन देखो, रिफ्रैक्टरी पीरियड से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. द इंटरवल ड्यूरिंग विच अ मसल फाइबर फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू अ सेकेंड स्टिमुलस. मसल्स को मैंने एक बार स्टिमुलस दिया, से ये है मसल्स का लेंथ, इट इज 1 मीटर, और मसल्स हैव बिकम हाफ द मीटर आफ्टर कंट्रैक्शन. सो द टाइम गैप दैट द मसल रिक्वायर्स टू कम डाउन टू इट्स नॉर्मल टाइम, दिस इज द टाइम व्हेन द मसल गेट्स टाइम टू रिवाइव द एनर्जी व्हिच हैज बीन लॉस्ट. देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए. तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, उसके बाद वो जो टाइम गैप उसको चाहिए टू रिगेन द लॉस्ट एनर्जी, वो एनर्जी अब निकल गया, उसको फिर से एनर्जी लेने के लिए जो समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड. जिस मसल में जितना कम रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा, वो ज्यादा फैटिक होगा. जिस मसल्स में रिफ्रैक्टरी पीरियड प्रोलॉन्ग होगा, मतलब उसको ज्यादा समय मिलेगा उसको वो एनर्जी रिगेन करने के लिए, तो वो कभी फैटिक नहीं होगा. Remember, once I asked you the question, why cardiac muscles never gets fatigued? उसका सबसे बड़ा आंसर क्या है, एंड सबसे एप्लीकेबल आंसर क्या है, वो है द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द कार्डियक मसल इज द लॉन्गेस्ट. स्केलेटल मसल में कितना है, 0.05, 0.0022 to 0.005 सेकेंड. देखो कितना कम समय, इसका समय जितना कम होगा उतना उसका फैटिक बढ़ेगा, इसलिए skeletal muscles becomes fatigued sooner. And what about in visceral muscles? It is 0.1 to 0.1 seconds. But in cardiac muscles, it is 0.05 seconds. 0.05 seconds, which is huge. Which is huge. Okay. Next is what? Next one is tetanus. The next one is tetanus. What is tetanus? Continued state of contraction caused by rapid succession of many stimuli. बार बार अगर मसल्स को रैपिडली स्टिमुलस दिया जाए विद इन द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द अर्लियर कंट्रैक्शन, पहले जब कंट्रैक्ट हुआ अभी तक वो रिलैक्स नहीं हो पाया, उसके बीच में ही अगर उस मसल्स को बार बार स्टिमुलस दिया जाता है, अगर बार बार स्टिमुलस दिया जाता है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो मसल विल रिमेन इन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट फॉर लॉन्ग. मसल बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा.
ओके, एंड दैट इज कॉल्ड टिटेनस. सो होल्डिंग ऑफ बुक, देखो होल्डिंग ऑफ बुक, आप ऐसे बुक को होल्ड कर रहे हो तो क्या होगा, देखो आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो बट स्टिल इट इज कॉल्ड टिटेनस. बार बार क्या हो रहा है, बार बार आपके हाथ में ऐसे होल्ड करोगे तो क्या, कुछ देर बाद क्या होगा, हाथ कांपना स्टार्ट कर देगा, पर यू आर होल्डिंग द बुक, सो दैट इज कॉल्ड टिटेनस. सी, रिगोर मोर्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आप जानते हो. ये मोर्टिस कहां से आया, फ्रॉम द टर्म मॉर्टैलिटी, द डेथ रेट, डेथ रेट, mortality, okay, mortality, okay. Now rigor mortis, the state of body stiffness after stiffening, after death. Death के बाद when the body becomes stiff, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बाबू. डेथ के बाद when your body becomes stiff, क्यों स्टीफ हो जाता है, बिकॉज वो जो एक्टिन के साथ मायोसिन हेड, एक्टिन के साथ जब मायोसिन हेड बाइंड करते हैं, it forms actomyosin complex, actomyosin complex. ये कॉम्प्लेक्स इसी हाल में रह जाता है. विदाउट एटीपी, डेड बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन बंद हो जाता है, सो द मसल रिमेन्स इन अ कंट्रैक्टेड स्टेट एंड दैट इज कॉल्ड रिगोर मोर्टिस. सी, ड्यू टू नॉन सेपरेशन ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन, ये मायोसिन हेड है, ये एक्टिन है, caused by non availability of ATP. डेथ के बाद क्या नहीं मिलेगा, बॉडी में ATP नहीं मिलेगा. So what is going to happen? The body is going to remain for contracted state and that is called rigor mortis. ये sixth property है. Fatigue, inability of the muscles to contract due to depletion of its chemicals and lactic acid. Lactic acid जम जाने से क्या हो जाएगा, muscle fatigue हो जाएगा. By repeated contraction, contraction ज्यादा repeated होगा तो मसल्स क्या हो जाएगा, फैटिक हो जाएगा. कौन सा मसल्स में सबसे ज्यादा फैटिक होता है, which muscle shows highest amount of fatigue? It is skeletal muscles. Okay. Isotonic contraction किसको कहते हैं? In this contraction tension remains same. Isotonic, iso मतलब क्या है, iso means similar, iso means similar. So similar when the tension, tonic मतलब tension remains same but skeletal muscles length changes. मसल का लेंथ चेंज होगा पर टेंशन सेम रहेगा. लाइक वॉकिंग एंड रनिंग, लिफ्टिंग अ डंबल, जब आप डंबल लिफ्ट करते हो तो क्या होगा, वो आइसोटोनिक कंट्रैक्शन है. क्या रिमेन सेम, द मसल्स साइज, द मसल लेंथ चेंजेस बट वो जो टोनिसिटी है, टेंशन है, वो रिमेन्स द सेम, कॉल्ड आइसोटोनिक कंट्रैक्शन. सो इन वॉकिंग एंड रनिंग ऑल्सो इट शोज isotonic contraction. This is also a property. And the last property is about isometric contraction. So what is about isometric? Iso मतलब क्या है, similar, same. Metric मतलब muscle का size will remain the same. See, muscle length remains the same. But isometric exercise helps maintain strength. ये isometric में tension में change आ सकता है but the muscle length remains the same. और इसमें it helps to maintain the strength in the muscles. इसको क्या कहते हैं, isometric contraction. I think you have got the idea about the different properties of muscle. इसमें सबसे important property जो था वो था, जहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो है about refractory period. So refractory period का ये जो वैल्यू है ये आपको याद रखना पड़ेगा. स्केलेटल मसल में सबसे कम वो 0.002 to 0.005 सेकेंड्स है. इन केस ऑफ विसरल मसल वो 0.1 से 0.2 सेकेंड्स है और सबसे ज्यादा है 0.5 सेकेंड्स इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स एंड 0.5 सेकेंड्स सबसे ज्यादा है उसमें. दैट्स व्हाई कार्डियक मसल्स नेवर गेट्स फैटिग्ड. I think you got the idea about what are the properties of muscles. In the next very video we are going to talk about the different contractile proteins. उसके बाद हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कंट्रैक्शन कैसे होता है. So hope you have got all the idea. Fine. Stay tuned and all the very best.